Good morning, students of class 4th. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had completed the creative writing of lesson 9, Unusual Friends, and I'm sure you all must have completed all the exercises of lesson 9 and read the lesson. Now children, today I'm going to start with unit 17 of your English grammar book, that is Degrees of Comparison. So all of you, please take out your English grammar book, turn to page 65, unit 17, Degrees of Comparison. Children, please take out your English grammar book, turn to page 65, unit 17, Degrees of Comparison. Now, students, we have already learned in the exercises of Wordsworth English Reader and in class 3 how to form the comparative degree and superlative degree from the positive degree. We all know that जो positive degree है वो adjectives है, and जब हम किन्हीं भी दो चीजों में compare करते हैं तो हम comparative degree use करते हैं. When there's a comparison between two things, we use the comparative degree, and generally the comparative degree is followed by then. And when there is a comparison in more than two things or people, then we use the superlative degree. And keep in mind, before superlative degree, article the is always there. So these are the clues which I'm going to I'm telling you, which you need to keep in mind. Now, if you look at page 65, let's read this poem based on degrees of comparison. Cutest and sweetest. This puppy is cute. These kittens are cuter. But my little sister is the cutest of all. These lemons are big. Those oranges are bigger. But these watermelons are the biggest of all. These apples are crunchy, fresh carrots are crunchier, but these potato wafers are the crunchiest of all. Lime water is good, apple juice is better, but homemade almond milkshake is the best of all. Sugar is really sweet, honey is even sweeter, but my mom's smile is the sweetest of all. So here you can see that in all these stanzas of the poem, the first degree is positive degree. And when do we use the positive degree? When we simply need to describe a thing, there is no comparison, or we treat two things as equal. Then the second line of the stanzas are of comparative degree. In comparative degree, we use this degree when there's a comparison between two persons or things. And the last is the superlative degree, which is the greatest degree of all, and we use this when there's a comparison in more than two things. Clear? Children, please turn the page. Now, you must have noticed the underlined words. All these are degrees of comparison. Cute, cuter, cutest, sweet, sweeter, sweetest. These are all degrees of comparison. We use adjectives to describe some persons or thing, और हम सबको पता है adjectives describing words होते हैं. We use them to describe person or things, and we also use the adjectives to show comparison. जब हम comparison बताते हैं तो हम adjectives use करते हैं. Now there are 3 degrees of comparison. The first is the positive degree, second comparative degree, and third superlative degree. Now children, look at this. I'm reading and explaining. Please listen to me carefully. In positive degree, there is no comparison. जो positive degree है वो simple adjective होता है, उसमें कोई comparison नहीं होता है. We also use the positive degree when we want to say that people or things are equal in some way. हम positive degree को कब use करते हैं? जब हम simply किसी चीज को describe करते हैं, उसका कोई comparison नहीं है, या हम किन्हीं दो चीजों को जब equal मानते हैं तब हम positive degree use करते हैं. Example: you are a cheerful girl. She is an industrious student. Right now I'm busy. I am as busy as a bee. यहाँ पे देखो, दो चीजों को
यहाँ पे दो चीजों को इक्वल समझा गया, कितनी बिजी है, जैसे कि एक बी। एंड द फोर्थ, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, यहाँ भी एज कितना ब्रेव, जैसे कि लायन, दो चीजों को सेम यहाँ पे माना गया है। तो पॉजिटिव डिग्री कब यूज करते हैं, जब सिंपली किसी चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं। एंड कीप इन माइंड चिल्ड्रन, सेंटेंस में आपको पॉजिटिव डिग्री आइडेंटिफाई करने का बहुत मैं इजी क्लू दे रही हूँ। पॉजिटिव डिग्री के पहले या तो ए होगा, एन होगा, वेरी होगा, या पॉजिटिव डिग्री के आगे या पीछे एज होगा, एज ब्रेव एज, है ना, एज स्वीट एज क्यूट एज। तो ये याद रखना, इट्स अ क्लू कि जब भी पॉजिटिव डिग्री के पहले ए हो, एन हो, वेरी हो, या एज, आफ्टर एंड बिफोर हो, तो वो पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री बच्चों कब यूज करते हैं, जब हम सिंपली किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं। या हम कब यूज करते हैं, जब हम किन्हीं दो चीजों को सम वे में इक्वल समझते हैं। फाइन। नाउ द सेकेंड डिग्री इज द कंपेरेटिव डिग्री। एंड हम कंपेरेटिव डिग्री कब यूज करते हैं, व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स और थिंग्स। किन्हीं भी दो लोगों को, जब हम दो लोगों या दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो हम कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं। और जनरली कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, THAN, then is followed by the comparative degree. Example, a mule is stronger than a donkey, gold is more expensive than silver, a car is faster than a rickshaw. And the third degree children is the superlative degree. और superlative degree हम कब यूज करते हैं, when there is a comparison in more than two persons or two things। जब दो से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा पहले बेटा द आता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या आता है, द। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास। सेकेंड, Mount Everest is the highest peak in the world. The Nile is the longest river in Africa. अब आप इन एग्जाम्पल्स में देखो, सुपरलेटिव डिग्री के सबके पहले क्या आया है, द, और कंपेरेटिव डिग्री के बाद क्या है बच्चों, देन। वेयर एज पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री के पहले मैंने क्या क्लू दिया था, ए हो, एन हो, वेरी हो, पहले या बाद में एज हो। तो आप ये अगर क्लूज याद रखोगे तो फिर आपको बिल्कुल गलती नहीं होगी। नाउ tip of the day, we generally use a and very as before or after with positive degree। जो मैंने आपको क्लू दिए थे वो यहाँ टिप ऑफ द डे में है। comparative degree is generally followed by then and superlative degree requires the before it। and now we are going to learn how to form the comparative degree and superlative degree from the positive degree। Comparative degree is generally formed by adding er to most of the main word। Generally comparative degree हम कैसे फॉर्म करते हैं, जो मेन पॉजिटिव डिग्री है उसके हम एंड में er लगा देते हैं। And superlative degree is generally formed by adding est or most to the main word। Comparative degree के एंड में er लगाना या पहले more लगाना, जनरली वैसे फॉलो करते हैं। वेयर सुपरलेटिव डिग्री के एंड में या तो EST लगेगा या आगे मोस्ट। क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कैसे डिग्रीज फॉर्म की जाएंगी ये हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 इज कंप्लीट द टेबल। इसमें हम सारे रूल्स सीखेंगे कि कैसे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन फॉर्म होती है। क्लियर। नाउ पहली डिग्री है पॉजिटिव, देन द नेक्स्ट इज कंपैरेटिव, एंड द थर्ड इज सुपरलेटिव। फाइन। नाउ आवर फर्स्ट रूल सेज, फर्स्ट रूल हमारा कहता है मोस्ट वर्ड्स एंड IER and EST। फाइन, ये याद रखना है हमको। फर्स्ट रूल कहता है कि मोस्ट जो पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स हैं उनकी कंपैरेटिव डिग्री
ई आर लगा के फॉर्म होती है और सुपरलेटिव डिग्री ई एस टी लगा के. So, the children, the first word is fair. Fine. Second word is sweet. Third word is cheap. And fourth word is fast. Clear? ये 4 पॉजिटिव डिग्री के दिया. इनके हमें कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी. फेयर की एंड में इफ आई एड ई आर क्या हो जाएगा? फेरर. ये मैंने कौन सी डिग्री फॉर्म की? कंपैरेटिव डिग्री. अब फेयर के ही एंड में अगर मैं ई एस टी एड कर दूं तो ये मेरी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी फेयरेस्ट. सो फेयर, फेरर, फेयरेस्ट. यू नीड टू कीप इन माइंड फर्स्ट वाला रूल याद रखना है कि मोस्ट वर्ड्स एड ई आर और ई एस टी. ई आर एड के हम कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं और ई एस टी एड करके हम सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं. स्वीट के एंड में मैं ई आर एड कर दूंगी तो मेरी कंपैरेटिव डिग्री स्वीटर. स्वीट के एंड में इफ आई एड ई एस टी देन द सुपरलेटिव डिग्री स्वीटेस्ट. देन द थर्ड वर्ड इज चीप. चीप के एंड में ई आर एड किया तो क्या हो जाएगा? चीपर. और चीप के एंड में ई एस टी एड किया तो क्या हो जाएगा? चीपेस्ट. सो चीप, चीपर, चीपेस्ट. देन द फोर्थ वन फास्ट. ई आर एड कर दिया, फास्टर. एंड ई एस टी एड किया तो क्या हो जाएगा? फास्टेस्ट. क्लियर? सो हमने अभी देखा कि हमारी जो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म होती है? पॉजिटिव डिग्री से. सो द फर्स्ट रूल सेज मोस्ट वर्ड्स एड ई आर टू फॉर्म द कंपैरेटिव डिग्री एट द एंड एंड add est at the end to form the superlative degree. Clear? So I hope अभी सबने ये फर्स्ट एक्सरसाइज का ए पार्ट कंप्लीट कर लिया है. Clear? Now I'm going to erase this and I'm going to explain the second rule. Exercise B. Okay. Now exercise B says words ending in E add R and ST only. अब सेकेंड रूल क्या कहता है? वो सारी पॉजिटिव डिग्री जिनके एंड में ई लगा हुआ है, जिनकी स्पेलिंग के एंड में, उनमें हमें कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए एंड में आर लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए एंड में एस टी लगाना है. नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स. The first word is large. Second, wide. Wide मतलब चौड़ा, broad. Third, pure. And eighth, brave. Now, look at these degrees. What is common in all these positive degree? Can you see E at the end of the spelling? इन सब में common क्या है? सबके end में E लगा हुआ है. Fine. अब इनकी कंपैरेटिव डिग्री रूल क्या कहता है? वो पॉजिटिव डिग्री जिनके एंड में ऑलरेडी ई लगा है उनकी हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे? बस इसमें हमको आर लगाना है. लार्ज में हमने आर लगा दिया तो क्या हो गया? लार्जर. सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे? लास्ट में हम एस टी लगा देंगे तो हो गया लार्जेस्ट. क्लियर? तो वो एडजेक्टिव्स पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स जिनके एंड में ई है उनमें हमें
कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए आर लगाना है इनमें, और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए एस टी लगाना है। तो वाइड का क्या हो जाएगा, वील ऐड आर वाइडर, एंड सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी एस टी ऐड करके वाइडेस्ट। प्योर खाली आर लगाना है, प्योरर, एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए एस टी लगा देंगे तो हो जाएगा प्योरेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ओनली ऐड आर एट द एंड, एंड सुपरलेटिव के लिए खाली एस टी, ब्रेवेस्ट। क्लियर? सो पहला रूल हमने पढ़ा कि कंपैरेटिव रूल ए सेज कि कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म होती है पॉजिटिव डिग्री के एंड में ER लगा देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, और EST लगा देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री। और हमने रूल बी क्या पढ़ा कि वो पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स जिनके एंड में E आता है उनकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हमें R लगाना एंड में, और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए ST। क्लियर? सो नाउ again I'll erase and I'll explain rule number C. Now rule number C says words ending in consonant plus Y replace Y and add ER and IEST. Now what does this rule says? ये रूल कहता है कि जितने पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स जिनके एंड में कॉन्सोनेंट और वाई हो, अब इजी की स्पेलिंग में एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद वाई। नेक्स्ट इज, दिस इज द 9th वन। 10th वर्ड इज हैप्पी। 11th वर्ड इज कॉस्टली, and 12th word is ugly. Fine. अब देखो कॉमन क्या है इन सब में, लास्ट में सब में y है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, y है उससे पहले कॉन्सोनेंट है। तो रूल कहता है कि वो सारी पॉजिटिव डिग्री जिनके एंड में कॉन्सोनेंट और y आता है उनकी हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे, y को रिमूव करके IR लगा देंगे तो इजियर हो जाएगा, एंड सुपरलेटिव डिग्री y को रिमूव करके IEST लगा देंगे तो सुपरलेटिव, IER लगाए y को रिमूव करके तो कंपैरेटिव डिग्री, और y को रिमूव करके IEST लगाए तो सुपरलेटिव डिग्री। इजी, इजियर, इजिएस्ट। हैप्पी में रिमूव y एंड ऐड IER, happier, remove y and add IEST, happiest. This is the superlative degree. Clear? Costly, we remove y and add IER, costlier, and we'll remove y and add IEST, costliest. Ugly ka, we'll remove y and IER, uglier, and superlative, we remove y and add IEST, uglier. So, ये याद रखना है रूल नंबर सी में कि वो सारे पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स जिनके एंड में y हो और y से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो उनकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म कैसे करेंगे, y को रिमूव करके IER लगाएंगे, एंड सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे, y को रिमूव करके IST लगाएंगे। क्लियर? सो आई होप यू ऑल विल लर्न these 3 rules which I have taught and explained. Please learn these rules. अगर आपने rules learn कर लिए तो फिर degrees of comparison will become very easy for you. So children, with this
exercise, I end today's video. Please do learn the 3 rules taught to you. So that's all for today. Thank you, children. Have a good day ahead.